چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کا فروغ حکومت کی ترجیح۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی وزیر یوتھ پروگرام کے تحت قرض کی رقم کو 5 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کرنے کی ہدایت۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تفصیلی سروے جلد مکمل کرنے کے احکامات۔ دنیا بھر میں ایس ایم ایز معیشت کی ترقی میں کلیدی اہمیت رکھتی ہیں۔ حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو سہولت کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم کا جائزہ اجلاس کے موقع پر اظہار خیال۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے جاپان کے سفیر اکاما سوچوشی کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال۔ حکومت اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی بینک کے ساتھ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اہم ہے۔ اس سے اہم چیلنجز سے نمٹنے، پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو فروغ ملے گا۔ وزیر خزانہ۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومتی کمیٹی کو اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کیے جانے کا امکان۔ جمہوریت میں مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن۔ امید ہے کہ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی نے آج تحریری مطالبات پیش کیے تو اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیراعظم کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ مطالبات کا تحریری جواب 31 جنوری سے پہلے دے دیں گے۔ ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ریڈیو پاکستان میں پاکستان ترکیہ فرینڈشپ میوزیم کا افتتاح۔ پاکستان اور ترکیہ کی دوستی کی طویل تاریخ ہے۔ پاک ترکیہ فرینڈشپ ریڈیو میوزیم دونوں ملکوں کے عوام کو مزید قریب لائے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا تقریب سے خطاب۔ حکومت کا نادرا موبائل ایپ لانچ کرنے اور نئے ریجنل دفاتر کے قیام کا فیصلہ۔ آزاد کشمیر، گوادر اور گلگت بلتستان میں 3 نئے ریجنل سینٹرز بنائے جائیں گے جو 31 مارچ سے کام شروع کریں گے۔ شہریوں کی مشکلات کے باعث کل سے نادرا کی پاک آئی ڈی ویب سائٹ بند۔ تمام خدمات موبائل ایپ پر فراہم کی جائیں گی۔ شناختی کارڈ، نائکو، پی او سی، بے فارم، ایف آر سی موبائل ایپ پر دستیاب۔ شہری گھر بیٹھے موبائل ایپ پر شناختی دستاویزات کی تمام کارروائی مکمل کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی۔ موسمیاتی تبدیلی بڑا چیلنج، اثرات سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان جیسے عالمی مسائل پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی آفات سے تحفظ اور بحالی کے لیے عالمی مالی امداد ناگزیر ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے مستحکم حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ کوآرڈینیٹر موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم کا تقریب سے خطاب۔ مہنگائی میں کمی، معاشی استحکام اور روپے کی قدر میں بہتری۔ ورلڈ اکنامک فورم کا پاکستان کی معاشی صورتحال پر اعتماد کا اظہار۔ معاشی چیلنجز کے باوجود پاکستان معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کڑے چیلنجز کے باوجود پاکستان نے درست اقدامات کی بدولت معاشی کامیابیاں حاصل کیں۔ خطے میں اسلحے کی دوڑ کے باوجود پاکستان کی محتاط سوچ لائق تحسین ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے گلوبل رسک رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ زرعی شعبے کی ترقی و خوشحالی ایس آئی ایف سی کی ترجیحات کا اہم حصہ۔ 35% بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے سندھ زرعی یونیورسٹی میں بایو سیلائن مرکز قائم۔ پاکستان میں 63 لاکھ ہیکٹر اراضی نمکیات اور پانی کی نکاسی سے متاثر۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد متاثرہ زمین پر درختوں اور پودوں کی کامیاب کاشت، پانی کے انتظام کا نیا منصوبہ زیر غور، 14 نہروں پر نکاسی کی نگرانی اور زرعی استعمال کے لیے تجزیہ۔ مشرق وسطی میں تقریباً 1.5 سال سے جاری صہیونی خون ریزی کے بعد عالمی امن کی جانب بڑی پیش رفت۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور مقویوں کے تبادلے کا معاہدہ۔ جنگ بندی معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل، اطلاق اتوار سے ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم کی جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے دوحہ میں پریس کانفرنس۔ غزہ کے رہائشیوں کا جنگ بندی معاہدے پر اظہار تشکر۔ امریکی صدر جو بائیڈن، نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یورپی یونین اور عالمی سطح پر جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔
गज़ा में जंग बंदी मुआहिदा खुशाइंद, इसराइल की जानिब से ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल से इंसानी जानों और अमलाक का बेतहाशा नुकसान हुआ। लाखों फ़लस्तीनी शहरी बेघर हुए। इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया है। उम्मीद है कि मुआहिदा मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना, जामे और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का इआदा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। हुकूमत सिंध की जानिब से पुरानी गाड़ियां 1 माह में नीलाम करने और सरकारी महकमों के लिए ईवी गाड़ियां खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास। ईवी गाड़ियां खरीदने से हुकूमत को फायदा होगा, पेट्रोल की बचत होगी, नीलामी में भी आसानी होगी। हुकूमत अवामी वसाइल के इस्तेमाल में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। शजील इनाम मेमन। भारत के जंगी जुनून की एक और मुहिम जोई नाकाम। भारतीय बहरिया का हरमस 900 ड्रोन तजर्बाती परवाज के दौरान गुजरात के पोरबंदर में गिरकर तबाह। आए रोज हादसात। भारतीय मुसल्लह अफवाज की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। ड्रोन खुफिया निगरानी और जासूसी के लिए 145 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा गया। मोदी सरकार का गैर मयारी मंसूबों पर अरबों डॉलर जाया करना मज़हका खेज अमल बन चुका है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। पहला मैच कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के लिए दोनों टीमों का मुल्तान स्टेडियम में तरबियती सेशन। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया। श्रीलंका के रंजन मदुगाले मैच रेफरी होंगे। मौसम सरमा के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स जारी। अलतित हुंजा में कुराकरम विंटर ल्यूट सीजन 7 आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले। इस दौर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग तकरीबात से आगाज। पहले रोज पंदोक, गटल पोलो, बटफल के मुकाबले। सऊदी अरब में डकार मोटर रैली 10वां मरहला स्पेन के नानी रोमा के नाम रहा। हस्पानिया रेसर रोमा ने हरस से शिबा तक 120 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 6 मिनट और 34 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। जनूबी अफ्रीका के हैंग लिटिगन ने सऊदी अरब के यजीद अर्राजी से मजमूई बरतरी वापस ले ली। मोटरसाइकिल कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के माइकल डुशर्टी कामयाब रहे। साल 2025 का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। सर्बिया के नोवाक जोकोविच मैडम वो 10 लाख तक के लिए है और जो पहले 6 महीनों में 5 लाख उसको मिलेगा और उसके बाद उसको 25% वो कैश विड्रॉल कर सकता है और अगले 6 महीने में फिर 5 लाख की वो जो है वो निकाल सकता है अपनी 5 लाख की अपनी जो उसकी लिमिट है उसको वो यूटिलाइज कर सकता है। और अगर किसी को इकट्ठा वो पैसा चाहिए तो क्या होगा? मैडम जैसे उसकी जितनी वो लिमिट अप्लाई करेगा उसका 50% ये डिसाइड किया था ताकि इसके अकॉर्डिंगली उसकी इंस्टॉलमेंट्स देखी जा सकें, प्लस वो ट्रांजेक्शंस करेगा और उसमें आई थिंक जफर साहब आई थिंक अगर किसी को 10 लाख चाहिए और कोई अपनी फीजिबिलिटी ले आता है जिसके लिए उसको 10 लाख इनिशियली चाहिए और उसको 2 ट्रांचेस में नहीं चाहिए, आप उसको 10 लाख दें। जी वो प्रोविजन है मैडम, वो फाइनेंस के अंदर है, वो कार्ड में नहीं है, वो फाइनेंस में, वो फाइनेंस में दोनों में नहीं, लेकिन बिल फर्ज मुझे कोई ऐसा कारोबार शुरू करना है 10 लाख रुपए से जिसमें मुझे 10 की 10 अभी चाहिए तो क्या हो? वो प्रोविजन है जी वो प्रोविजन है मैडम, फाइनेंस का जो है प्रोग्राम उसमें प्रोविजन है। नहीं, मैं कार्ड की बात कर रही हूँ। जी कार्ड में भी अगर वो अप्लाई करेंगे ना मैडम तो हम उनको डाइवर्ट कर देंगे फाइनेंस की तरफ ताकि वो प्रोग्राम के अंदर ही रहें। वो जो फीचर्स है फाइनेंस के उसमें 10 से 50 लाख एक है
टियर 1 और टियर 2 जो है 50 से 15 से 50 लाख से 3 करोड़ तक है। तो वो नहीं, देखिए आप कार्ड में भी ये डालें ठीक कि अगर किसी को 10 लाख इकट्ठा चाहिए और आपको कोई सेटिस्फाई कर जाता है, आप उसको 10 लाख जी दें। बिल्कुल ठीक, ये देख लें। देख नहीं लेते, डालना है इसके जी अंदर। ठीक है। राइट मैडम, मैं वज़ीर आला पंजाब को रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली प्लीज़ कम ऑन द रोस्ट्रम एंड से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। एक सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आज एक बार फिर पंजाब एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्कीम लॉन्च करने जा रहा है, जो पंजाब का जो पूरा बिज़नेस जो उसका पूरा क्लाइमेट है, बिज़नेस का लैंडस्केप है, उम्मीद है कि उसमें एक रेवोल्यूशन आएगा इस स्कीम के साथ इंशाअल्लाह ताला। बहुत साल के मलेज़ के बाद, इकोनॉमिक मलेज़ के बाद, जब लोग ये कह रहे थे कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है वो सिंक कर गई है और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिन रात एक करके उन्होंने न सिर्फ वो ख़तरे को टाला, बल्कि अब क्या बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि आखिरी ख़बरें जब वो अच्छी आई थी पाकिस्तान के लिए, वो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में 2017 में, कि जब ग्रोथ रेट आपका क्लोज टू 6 था, 5.7 था, और लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, दहशत गर्दी ख़त्म हो गई थी, स्टॉक मार्केट उस वक्त 55,000 का नया रिकॉर्ड बनाया था, और बहुत इकोनॉमिकली स्टेबल मुल्क था और टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जितना भी 4 साल का वक्त गुज़रा, उसमें वो सारी तबाही, इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट में थी, वो इन्फ्लेशन 38% तक चली गई। वो डॉलर जो कि 100 रुपये का था, 104 रुपये का था, वो चला गया 250 तक। तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब इम्प्रूव कर रहे हैं, और अब वक्त आ गया है कि उस जो इम्प्रूवमेंट इकॉनमी में आ रही है, स्टॉक मार्केट आपकी 1,18,000 को क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान के 76 सालों में आई थिंक ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो स्टॉक मार्केट ने तोड़ा है। इसी तरह आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, आपके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं। जो दुनिया का इन्वेस्टर है, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और पाकिस्तान इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस दीज डेज़। तो मैं ये समझती हूँ कि इन्फ्लेशन भी जिस तरह नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट को प्राइम मिनिस्टर कम कर रहे हैं, और कल उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 11 रुपये जो है वो बिजली भी उसकी भी कॉस्ट जो है वो नीचे आएगी। स्टॉक मार्केट इम्प्रूव कर रही है, आपके रिज़र्व्स इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी रेमिटेंसेस इम्प्रूव कर रही हैं। तो अब ये वक्त है कि जो इसका समर है, जो इसका फ्रूट है, वो एक आम इंसान को भी मिले, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है वो तभी आप कह सकते हैं कि तरक्की कर रही है, स्टेबलाइज हो रही है, जब उसका समर जो है वो एक आम आदमी को मिलना शुरू होता है। तो मैं जब स्टडी करती हूँ दुनिया के मॉडल्स, तो आपको ये पता चलता है कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है, चाहे वो चाइना हो या वो जापान हो या वो मलेशिया हो, या अब आपका जो नेबर है इंडिया हो, या इवन अब वियतनाम को आप देख लें, किसी मुल्क ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं की। और अब वो वक्त है कि हम वी शुड गो बिग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके लिए मैं आज एक बहुत शानदार पैकेज लेके कौम के सामने आई हूँ, पंजाब के लोगों के आवाम के सामने आई हूँ। पंजाब के इन्वेस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आई हूँ, जो पंजाब की और पाकिस्तान की तकदीर बदलने की अहलियत रखता है। इसमें हम स्टिमुलस देना चाहते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को, क्योंकि किसी भी तरक्की के लिए अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं, जितना उससे फ़ायदा आपकी लोकल इकॉनमी को होता है, एक आम इंसान को होता है, एक छोटे इन्वेस्टर को होता है,
اس سے اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ چل پڑتا ہے اور اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگوں کو ملتا ہے. تو ہم آج چیف منسٹر آسان کاروبار فائنانس لے کر آئے ہیں. چیف منسٹر آسان کاروبار کارڈ لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ کو 3 کروڑ تک کا قرضہ 100% انٹرسٹ فری ملے گا. اس پہ 0 انٹرسٹ ہے. اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب بیئر کرے گی. اور اس کے لیے آپ کی جو اس کو شروع کرنے کا ٹائم ہے اس کو ہم نے 0 کر دیا ہے. آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی لائسنس کی ضرورت نہیں, آپ کو کوئی نقشہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں. آج آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے یا اپنے ایگزسٹنگ کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا ہے یا اسٹیبلائز کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ بینک آف پنجاب کو اپلائی کریں گے. قرضے کے لیے جتنی بھی اماؤنٹ آپ کو چاہیے ہم نے آپ کے لیے بزنس پلانز بھی بنا دیے ہیں. ہم نے آپ کے لیے جو فیزیبلٹیز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے ایک ہینڈ ہولڈنگ کا سسٹم بھی ڈیولپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو کاروبار کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے یا ان کے پاس کوئی پرائر ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ان کے لیے ہم نے پورا ہینڈ ہولڈنگ کا ایک سسٹم, میں نے ظفر صاحب کو جو بینک آف پنجاب کے ہیڈ ہیں ان کو میں نے یہ ہدایت کی ہے کہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کوآپریشن کے ساتھ مل کے ہم آپ کے لیے بزنس پلانز بھی بنا رہے ہیں, فیزیبلٹیز بھی بنا رہے ہیں, اور along the way قرضہ ملنے کے بعد اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو ٹربل شوٹنگ کے لیے بھی ہم آپ کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. اور یہ تاریخ کا اپنا پہلا ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو 3 کروڑ تک کا قرضہ 100% سود فری ملے گا. آپ آج قرضہ لے لیں اور کل سے اپنا کام شروع کر دیں تو یہ ہم نے اس کو پاسبل بنا دیا ہے. آپ کو اگر نقشہ پاس کرانا ہے وہ along the way ہوتا جائے گا. آپ کو کوئی NOC کی ضرورت ہے, کسی لائسنس کی ضرورت ہے, وہ بھی آپ بعد میں کر سکتے ہیں. تو آپ کا جو سٹارٹ کرنے کا بزنس کا ٹائم ہے وہ 0 ہے. آج لیں اور کل سٹارٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو انسینٹیوائز کر رہی ہوں. اگر آپ کو زمین کی ضرورت ہے, اگر آپ کو کوئی چھوٹی فیکٹری یا پلانٹ لگانے کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بالکل کنسیشنل ریٹس پہ جو زمین ہے وہ دیں گے, چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں ہو یا وہ آپ کی جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہاں پر ہو. ہم آپ کو بالکل نامنل ریٹس کے اوپر میں زمین, جس کو مفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروسیس کے تھرو ہم آپ کو وہ زمین دیں گے. آپ اپلائی کریں اگر آپ کو زمین چاہیے, آلموسٹ مفت ہے وہ زمین. آپ وہاں پر زمین کا ٹکڑا لیں, وہاں اپنا کاروبار شروع کریں اور ساتھ ساتھ آپ کی جو لائسنسز ہیں وہ بھی ہوتے جائیں گے. ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں اگر کوئی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے اور زیادہ جو ہے اس کو انسینٹیوائز کیا ہے. اس کے لیے ہم اور کنسیشنز لے کے آ رہے ہیں اور انسینٹیوز لے کے آ رہے ہیں تاکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھیں اور پاکستان کی ڈپینڈنس دوسری چیزوں پہ کم ہو. تو وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہاؤس ہولڈ ارننگ میں اور انڈیپینڈنٹ بننا چاہتے ہیں فائنینشلی, اور اس وقت ان کے پاس نوکری نہیں ہے, تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ یہ اسکیم ان کے لیے ہے. اور جو ایگزسٹنگ, کیونکہ پچھلے بہت سال اکنامک ملیز رہا ہے تو لوگوں کے کاروبار نے بہت سفر کیے, اس لیے وہ لوگ جو ابھی ایگزسٹنگ ان کا کوئی کاروبار ہے لیکن ان کو اور زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے جس کو وہ انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنے کاروبار کو بہتر کر سکتے ہیں, اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, تو یہ اسکیم جو ہے یہ ان کے لیے بھی ہے, بزنس اسٹارٹ اپس کے لیے ہے. اور جو ویلیو ایڈیشن کوئی سپلائی چین اپنی بنانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے. ابھی میں مائنز اینڈ منرلس کی پریزنٹیشن لے رہی تھی, میں نے دیکھا کہ جو ہمارا پنک راک سالٹ ہے اس کا خزانہ ہے ایک پنجاب کے پاس, تو میں یہ, اور اس کو کوڑیوں کے داموں جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جس کو دوسرے ملک اس کو تھوڑا سا ویلیو ایڈ کر کے اس کو کئی گنا مہنگے ریٹس پہ اس کو دنیا میں بیچا جاتا ہے اور اس کا پروفٹ بناتے ہیں. پاکستان جہاں سے وہ راک سالٹ نکلتا ہے, جہاں مائنز ہیں, جہاں پر کیوز ہیں, جو خزانہ ہے راک سالٹ کا, پاکستان کو کچھ نہیں ملتا, اور دوسرے ملک پاکستان کا راک سالٹ جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر کے وہ اس کو بیچ کے پروفٹ کما رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس زون میں میاں والی کا وہ زون ہے وہاں پر اگر آپ کو پلاٹ چاہیے
लैंड चाहिए वो भी हम आपको देंगे नॉमिनल रेट्स के ऊपर. आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर आप जो पिंक सॉल्ट के साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जैसे लैम्प्स हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी देख के आई थी. अज़मा आप काइंडली वो मैंने उसको इनको कहा है कि वो विजुअल्स बना के टीवी पे चलाएं ताकि लोगों को ये पता चले कि क्या क्या उसमें भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो वो जो आपके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी आपकी इंडस्ट्री है, प्लांट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए हम स्पेशल इंसेंटिव्स लेके आ रहे हैं. मेरा नहीं ख्याल कि अपना ज़ाती कारोबार करना इससे पहले इतना आसान था. आज आप लोन के लिए अप्लाई करें, विद इन डेज़ इंशाल्लाह ताला आप हमने कोई बड़ी रकम नहीं मांगी, कोई बड़ी आपसे गारंटीज़ नहीं हम मांग रहे, कोई हम आपसे गिरवी नहीं चीज़ें रखवा रहे. हम आपको बहुत आसान शराइत पे जो है वो कर्ज़ा देंगे और ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ देंगे. आप अपना कारोबार शुरू करें, कमाना शुरू करें और अपनी जो एक साथ हैं वो आसान एक साथ हम कर रहे हैं वो आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को फाइनेंशियली जो है वो स्टेबलाइज़ करें और साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपकी जो कर्ज़े की एक साथ है वो भी चलती जाएंगी. तो मेरा ख़्याल है कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं इससे बेहतर स्कीम शायद उनको अभी नहीं मिल सकती. और जिनको 3 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ा चाहिए वो भी हमें लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं. उसको भी हम इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम ज़रूर जो है वो उनकी भी हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जो चाहिए वो भी देंगे. और जो कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, उसको हम 50 लाख का जो सोलर है उसकी पूरी इंडस्ट्री को हम सोलराइज़ करेंगे. 50 लाख का सोलर जो है हम उसको बिल्कुल फ्री देंगे इंशाअल्लाह ताला. तो बहुत बड़ा मौका है पंजाब के डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए. इसी तरह हम एक बहुत अच्छी इंसेंटिव्स की स्कीम ला रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए. उनको भी हम बहुत नॉमिनल कंसेशनल रेट्स पे जो है वो हम अपनी लैंड ऑफ़र कर रहे हैं और कि आप सिर्फ अपना कैपिटल लेके आएँ, आपको लैंड भी मिलेगी, आपको लाइसेंसेस भी मिलेंगे, आपको कनेक्शंस भी मिलेंगे, आपको एनओसीज भी मिलेंगे. आप आएँ और आके अपनी काम शुरू कर दें और बाकी प्रोसेस जो है वो साथ साथ चलता रहेगा. तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी नौयत की एक पहली स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है और इसका फ़ायदा उठाएँ. आप अपनी भी जो आपका अपना कारोबार है उसको भी सेट करें, उसको भी आप तक़वियत दें और स्टेबलाइज़ करें, फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर करें और साथ ही साथ पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो हम देखना चाहते हैं और जो इंडस्ट्रियलाइज़ करना चाहते हैं पंजाब को, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करें. अपने मुल्क की तरक्की में, अपनी इकॉनमी की जो स्टेबलाइजेशन है उसमें भी कंट्रीब्यूट करें. तो मेरी दुआ है कि हम जो भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और जो भी हम इक़दामात उठा रहे हैं आवाम की भलाई के लिए हम जो कर रहे हैं वो उसका समर जो है बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला पंजाब को और पाकिस्तान को और पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को मिलेगा. तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू. आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताही तकरीब जिससे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी. उन्होंने कहा कि पंजाब में एक बार फिर कारोबार की दुनिया में एक इनकलाबी इकदाम लिया जा रहा है. तमाम इकनॉमिक इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है. पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र फिर से शुरू हो चुका है. ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं, महंगाई की शरह कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट भी बेहतर हो रहा है. छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात फराहम कर रहे हैं. आसान शराइत पर आसान तरीके से उनको कर्ज फराहम किया जाएगा और उनको एक हेल्पिंग हैंड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर उनका कारोबार जो है वो नीचे जा रहा है या मुश्किलात का शिकार है तो उनको मदद फराहम की जा सके. अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़. खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमैरा राना और मैं हूँ शाहिद नसीम. बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद. हमारे साथ रहिएगा. पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार. सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान. दुरुस्त हर वक्त, बर वक्त.
खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे SMEs के कारोबार के उमूर पर जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत को कारोबार की तरगीब देने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियत देने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग दिया जाए ताकि मुल्की बरामदाद में इजाफा हो। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत नौजवानों और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को इस कदर बाइख्तियार बनाने के लिए कोशा है कि वो न सिर्फ खुद रोज़गार कमाएं बल्कि रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने छोटे पैमाने के कारोबार के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज़ की रकम को बढ़ाकर 5 लाख से 15 लाख करने की हिदायत की। उन्होंने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए उनका तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने और मौजूदा सहूलियात को बैनुल-अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इतलाक़ यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत की रोशनी में SMEs की तरक्की और सहूलत के लिए हुकूमती इक़दामात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने के बाद SMEs के लिए कर्ज़ के फार्म को मज़ीद आसान और सादा कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SMEs अपने कारोबार की बेहतरी के लिए कर्ज़ की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। इजलास को बताया गया कि SMEs की दर्जाबंदी इस हवाले से की जा रही है कि तमाम छोटे और मतवसत पैमाने के कारोबार हुकूमती मुआवनत और सहूलियात से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और उन्हें बर वक्त और आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी यकीनी हो। इजलास को मज़ीद बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर SMEs में बहुत छोटे पैमाने और घरेलू ख़वातीन के छोटे कारोबार की सहूलत के लिए एक नई कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई जाएगी जिसमें उनको कर्ज़ के हुसूल में आसानी से लेकर कारोबार की बेहतरी के लिए हुकूमती मुआवनत हासिल करने में आसानी होगी। इजलास को पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से 3 बड़े शहरों में SMEs के अशारियों से आगाह किया गया और बताया गया कि आइंदा चंद माह में पूरे मुल्क में मौजूद SMEs को बेहतर सहूलियात की फराहमी की मनसूबाबंदी के लिए सर्वे किया जाएगा। इजलास को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर SMEs को मुआवनत के हुकूमती लाए अमल के अहदाफ और उनकी तकमील की मुद्दत पर भी जामे ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि समेडा रवां बरस फरवरी तक SMEs के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी और तरबियती प्रोग्राम का इजरा करेगा। इसके अलावा SMEs को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाने के लिए भी प्रोग्राम को रवां बरस के वस्त तक हतमी शक्ल देकर जारी कर दिया जाएगा। इजलास को SMEs के हवाले से मुल्की बरामदाद में इजाफे के लिए जामे लाए अमल के अहदाफ और उनकी मुय्यना मुद्दत के हवाले से आगाह किया गया। इजलास को ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की तरक्की के लिए मुरतब दी जा रही पॉलिसी पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर इकामा सोशोची से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इक़्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के साथ जापान की देरीना शराकतदारी को सराहा। उन्होंने कहा कि मालियाती फ्रेमवर्क, टैक्सेशन, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई और निजकारी से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की आबादी में इजाफे और मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बैंक के साथ दस्तखत किए गए 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 10 साला पार्टनरशिप का मकसद उन चैलेंजेस से निमटने और पायदार जामे इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देना है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी की सदारत में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास इन कैमरा है। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में हुकूमत और अपोजिशन के 2 मुज़ाकराती सेशंस हो चुके हैं। तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि आज के मुज़ाकरात में अपोजिशन अपने मुतालबात से तहरीरी तौर पर हुकूमत को आगाह करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जमहूरियत में मसाइल का हल मुज़ाकरात ही से निकल सकता है। PTI अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश करेगी। उम्मीद है कि मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की कमेटी में 7 जमातें हैं, उन्होंने अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाना है, मुशावरत करनी है जिस तरह इन्होंने की है अपने लीडर से। तो हमने भी वज़ीर आज़म से बात करना होगी, मियाँ साहब से करना होगी, हमारे जो 3 अरकान हैं। तो इट में टेक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे। सर क्या आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात से कोई वे आउट निकल सकता है? आगे बढ़ सकते हैं? मुज़ाकरात इसीलिए होते हैं कि रास्ता निकाला जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं रास्ता कोई ना कोई निकालें। तो सर आप समझते हैं कि मज़ीद कितने मुज़ाकरात का इम्कान हो सकता है? देखें, अभी अगर उनके मुतालबात आ जाते हैं तो फिर हमारी तरफ से उनको
इंशाल्लाह हम इन राइटिंग उसका जवाब देंगे, 31 से पहले दیں گے. वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने रेडियो पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा पाकिस्तान तुर्किया फ्रेंडशिप म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तानी तुर्की को अपना दूसरा घर समझते हैं। म्यूजियम के क़याम का मकसद आने वाली नस्लों को पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की अहमियत से रूशनास कराना है। अताउल्लाह तारड़ ने यकीन जाहिर किया कि यह म्यूजियम पाकिस्तान तुर्की ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में एक संग मील साबित होगा। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान की शानदार तारीख को भरपूर अंदाज में महफूज और पेश करने में तुर्की के ताउन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला कर लिया। नादरा की पाक आईडी वेबसाइट बंद करके तमाम खिदमात अब मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वेबसाइट के इस्तेमाल में शहरियों बिलखुसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आती थीं। उंगलियों के निशानात और मतलूबा दस्तावेज़ात स्कैन करके अपलोड करने में भी परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि जालसाज अनासी जाली वेबसाइट्स के जरिए शनाख्ती दस्तावेज़ात बनवाने में मुआवनत का कारोबार कर रहे थे। शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती थी। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा ने जालसाज अनासर का सख्ती से नोटिस लिया है। इन सरगर्मियों के तदारुक के लिए कल से वेबसाइट बंद की जा रही है। उन्होंने कहा कि नादरा दीगर इदारों के साथ मिलकर इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बना रहा है। नादरा की मोबाइल ऐप को पहले से बहुत मज़ीद बेहतर बना दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि शनाख्ती कार्ड, नाइकॉब, POC, बे फॉर्म, FRC समेत तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर दस्तियाब हैं। शहरी घर बैठे मोबाइल ऐप पर शनाख्ती दस्तावेज़ात की तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 3 नए रीजनल सेंटर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे, जो 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। इन दफातर के क़याम से नादरा हुकाम और शहरियों के दरमियान राबते में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि रीजनल दफातर के क़याम से दूर दराज इलाकों के नादरा मराकज़ में खिदमात की फराहमी बेहतर होगी। शहरियों के मसाइल तेज़ी से हल होंगे, शिकायत का फौरी इजाला होगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक मुल्क की तमाम तहसीलों में नादरा दफातर कायम करने का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। मुल्क भर में सिर्फ 19 तहसीलों में नादरा दफातर का क़याम बाकी था। इस ज़िम्न में काम तेज़ी से जारी है। 31 मार्च तक इन तहसीलों में भी नादरा दफातर फ़ाल हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के लिए मुस्तहकम हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए तवील मुद्दती मनसूबों पर काम कर रही है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा ज़रई शोबे को बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने होंगे। पाकिस्तान में सैलाबों और खुश्क साली के ख़तरात में इजाफा हुआ है। ज़रई पैदावार पानी की कमी से मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए वसाइल की कमी का सामना है। मौसमियाती आफात से तहफ़्फ़ुज़ की तैयारी और बहाली के लिए आलमी माली इमदाद की ज़रूरत है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बराए 2025 जारी कर दी गई है, जबकि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जियोपॉलिटिकल, इक़्तिसादी, माहौलियाती तनाजुर में गहराई से तजिया पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। रिपोर्ट में आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदही भी की गई और आलमी खतरात के तनाजुर में पाकिस्तान के इत्मीनान बख्श कारकर्दगी को भी नुमायां किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश इक़्तिसादी, माहौलियाती, सियासी और तकनीकी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने कई माशी चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता चंद सालों में काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की और आलमी सतह पर दरपेश गैर यकीनी हालात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के हिकमत अमली को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पॉलिसी में तब्दीली और आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हुकूमती इक़दामात और SIFC की सहूलतकारी के बाद ज़राअत का शोबा तरक्की की जानिब रवां दवा है। पाकिस्तान की 35% बंजर ज़मीन को काबिल काश बनाने के लिए सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी में बायोसैलाइन मरकज़ का क़याम किया गया। बायोसैलाइन मरकज़ में नमकियात से मुतासिरा ज़मीन के लिए जदीद हिकमत अमली बनाने के लिए काविशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में 6.3 मिलियन हेक्टर अराजी नमकियात और पानी की निकासी से मुतासिरा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलवी तहकीकी मरकज़ की माली मुआवनत से नमकियात के असरात पर प्रोजेक्ट की तकमील खुशाइन करार दी गई है। मनसूबे की तकमील के बाद नमकियात से मुतासिरा ज़मीन पर दरख्तों और पौधों की कामयाब काश्त की जा सकेगी। पानी के इंतज़ाम का नया मनसूबा भी ज़ेर गौर है। 14 नहरों पर पानी की निकासी की निगरानी और ज़रई इस्तेमाल के लिए तजिया किया गया।
SIFC کے تعاون سے اقتصادی اور زرعی فوائد کے حصول کے لیے قابل تحسین کاوشیں جاری ہیں۔ اور ناظرین، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ بعد جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا۔ قطر کے وزیراعظم نے دوحہ میں پریس کانفرنس کے دوران معاہدہ طے پانے کا اعلان کیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مصر اور امریکہ نے بھی معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کا اطلاق اتوار سے ہوگا۔ معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا، جس میں 33 اسرائیلی مغوی رہا کیے جائیں گے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے جیلوں میں قید 2000 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ معاہدے کے 16ویں روز سے جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع ہوں گے۔ غزہ کے رہائشیوں نے جنگ بندی معاہدوں پر اظہار تشکر کیا ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپی یونین سمیت عالمی سطح پر معاہدے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریز نے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ اس عمل سے غزہ میں امدادی قافلوں کی آمد و رفت میں حائل رکاوٹیں دور اور فلسطینیوں کی مشکلات میں کمی آئیں گی۔ ادھر اسرائیلی جنگی طیاروں نے آج بھی غزہ میں حملے جاری رکھے، جس کے نتیجے میں 20 فلسطینی شہید، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین پر بھی بمباری میں مزید 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امید ہے کہ اس سے مکمل جنگ بندی کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت انسانیت سوز مظالم کا باعث بنی۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامع حل کا خواہاں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد میں مسلم ممالک میں خواتین کی تعلیم سے متعلق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں وزیراعظم شہباز شریف نے خواتین کی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو پاکستان کی دہشت گردوں کے حوالے سے تشویش کو جامع اقدامات سے دور کرنا چاہیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت جاری ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI اور بشرا بی بی کی توشخانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے درخواست گزاروں کے وکیل کو درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کرتے ہوئے کہا کہ درخواست پر بشرا بی بی کے دستخط نہ ہونے کا اعتراض دور کروا لیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کو ٹرائل تیز نہ چلانے کا حکم دے سکتی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جب تک ہماری اس درخواست کو ڈائری نمبر نہیں لگ جاتا عدالت ایسا آرڈر کر دے۔ عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی۔ وزارت خزانہ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 47 پیسے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 260 روپے 95 پیسے ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا اطلاق ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے باعث کیا گیا۔ SIFC کی عمل درآمد کمیٹی کا 10واں اجلاس 15 جنوری کو منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت سیکرٹری SIFC ایپیکس کمیٹی نے کی، جس میں DG SIFC کے علاوہ وفاقی اور صوبائی سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ افسران شریک تھے۔ اجلاس کے دوران صحت، صنعت اور توانائی کے شعبوں سے متعلق اہم نکات پر غور و خوض کیا گیا۔ وزارتوں نے جاری منصوبوں اور پالیسی سطح کے اقدامات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ادویات کے ساتھ ساتھ خون سے پلازما اخذ کر کے برآمدات میں معاون بنانے سے متعلق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ کمیٹی نے کویت فارن پیٹرولیم کمپنی اور 3 گارجز چائنا کمپنی کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں SIFC کے ساتھ تعاون میں حکومت پنجاب کی خدمات کو سراہا۔ کمیٹی نے جاری منصوبوں کی تکمیل میں تیزی لانے کے لیے وفاق اور صوبائی سٹیک ہولڈرز کو ہدایات جاری کیں تاکہ ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کو آسان بنایا جا سکے۔ پاک فوج کے زیر اہتمام میران شاہ میں قبائلی عمائدین کا جرگہ منعقد کیا گیا اور اس جرگے میں مقامی مشران اور عمائدین اور ضلعی انتظامیہ نے شرکت کی۔
जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने जिरगे को खुश आमदीद कहा और शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए इलाका मिशरान की खिदमत को सराहा। शरका ने सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम के माबेन हम-आहंगी और कबायली अमायदीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। कबायली अमायदीन ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और तालीम के फ़रोग के लिए पाक फौजी काविशों को सराहा। कबायली अमायदीन ने फितनतुल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ शाना बशाना खड़े रहने और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। भारतीय बहरिया में शामिल किए जाने वाला हर्मेस 900 ड्रोन तजर्बाती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हर्मेस 900 ड्रोन की तजर्बाती परवाज गुजरात के पोरबंदर में की जा रही थी। ये ड्रोन भारतीय फौज और बहरिया की खुफिया निगरानी और जासूसी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए खरीदा गया। हर्मेस 900 ड्रोन अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इसराइली डिफेंस फर्म अल्बर्ट सिस्टम्स के ताउन से तैयार किया गया था। हर्मेस 900 ड्रोन की कीमत तकरीबन 145 करोड़ भारतीय रुपए बताई जा रही है। मोदी सरकार का गैर मयारी मंसूबों पर अरबों डॉलर खर्च करना मज़ाक़ खेज़ अमल बन चुका है। रवा साल भारतीय कोस्ट गार्ड के धर हेलीकॉप्टर्स हादसा के बायस ग्राउंड कर दिए गए हैं। सितंबर 2024 में भारतीय बहरिया की आबदोज INS अरेघाट तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हो गई, जिसे बहरी बेड़े से दस्तबरदार कर दिया गया। जुलाई 2024 में भी भारतीय बहरिया के जंगी जहाज INS बरहमपित्रा में आग भड़क उठी थी। 2019 में भारतीय बहरिया का जंगी हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हुआ। मार्च 2018 में भी भारतीय बहरिया का रिमोट से चलने वाला ड्रोन परवाज के फौरन बाद पोरबंदर के इलाके इल्हासनगर में तबाह हुआ। भारतीय बहरिया में तकरीबन 14 आबदोजें हैं, लेकिन तकनीकी खराबियों के बायस सिर्फ 7 ऑपरेशनल हैं। भारतीय जंगी जुनून को परवान चढ़ाते हुए जदीद हथियारों के अंबार लगा रहा है, मगर इन हथियारों को संभालने और इस्तेमाल करने की सलाहियत से आरी है। आए रोज़ भारतीय अफवाज में हादसात भारतीय मुसल्लह अफवाज की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करने और भारतीय कब्जे के तल्ख हक़ाइक़ से चश्मपोशी से मुतल्लिक़ बयानात की शदीद मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरों और प्रोपेगंडे के जरिए जम्मू कश्मीर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल को मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिशों पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का मकसद कश्मीरी अवाम को दरपेश मुश्किलात को छुपाना है, जिन्हें मकबूजा इलाके में तैनात तकरीबन 10 लाख भारतीय काबिज फौजियों के हाथों शदीद मसालिम का सामना है। हुर्रियत रहनुमा आगा सईद हसन मूसवी और गुलाम मोहम्मद खान सुपूरी ने अपने बयानात में तरक्याती मनसूबों के जरिए अमन के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि तरक्याती इक़दामात के नाम पर रेलवे लाइनें और सुरंगों के मनसूबे मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय भारतीय फौजी की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। हुर्रियत रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान की मज़म्मत करते हुए इसे तारीखी हक़ाइक़ को दानिस्ता तौर पर मस्ख़ करने की कोशिश और इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दिया। दूसरी जानिब जम्मू में भारतीय हुक्काम के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ बेघर मुसलमान खानदानों ने एहतजाज किया। 1251 खानदान रिलीफ की बहाली का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर निकले, जिन्हें तस्दीक के नाम पर इमदाद की फराहमी रोक दी गई है, जबकि बेघर पंडितों को बगैर किसी रुकावट के इमदाद फराहम की जा रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हुक्काम इम्तियाजी सलूक ख़त्म नहीं करते वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां। लॉस एंजलिस के जंगल से शहर तक फैलने वाली आग से 60 लाख अमेरिकियों को खतरे का सामना है। चंद घंटों बाद हवाओं के चक्कर चलने की पेशगोई ने हलचल मचा दी। आग लॉस एंजलिस से बाहर दीगर शहरों तक फैलने की वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग फैलने के बाद से अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस की इंतजामिया को आग बुझाने वाले अमले की शदीद कमी का भी सामना है। आतिशज़दगी से माली नुकसान का तखमीना $240 अरब से तजावुज़ कर गया है। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और पहले से लगी आग में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। जनूबी कोरिया के मुअत्तल सदर योन सेक योल गिरफ्तार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश पर गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। योन सेक योल ने गिरफ्तारी से कबल एक बयान में कहा था कि वो किसी भी किस्म की तजादुम से बचने के लिए तहकीकाती इदारों की मुआवनत करेंगे।
रुख करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि ट्यूबवेलों की सोलर सिस्टम मुंतकली से ज़मींदारों के अखराजात और मसाइल भी कम होंगे। कोयटा में अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे की क़यादत में ज़मींदार एक्शन कमेटी कला सैफुल्लाह के वफ़द से मुलाकात के मौके पर सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे की मईशत में ज़राअत का मरकज़ी किरदार है। किसानों की फलाह हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। ज़राई पैदावार बढ़ाने और ज़मींदारों को जदीद सहूलतें देने के लिए जामे पॉलिसी भी बनाई जा रही है। वफ़द ने वज़ीर आला को कला सैफुल्लाह के ज़मींदारों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने वज़ीर आला हाउस कराची में अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सुबकदोश होने वाली सारा मोनी को खिदमात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में बरतानिया की जानिब से मनसूबों में शमूलियत की तारीफ की। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने अपने दौर में ताउन पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने सुबकदोश होने वाली बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर को शील्ड और सिंधी अजरक के तहाइफ पेश किए। हुकूमत सिंध की जानिब से पुरानी गाड़ियाँ 1 माह में नीलाम करने और कराची के सरकारी महकमों के लिए EV गाड़ियाँ खरीदने का फैसला किया गया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध काबीना की ज़ैली कमेटी बराए किफ़ारिशकारी का कराची में इजलास हुआ। इजलास में कमेटी मेंबरान की जानिब से सरकारी गाड़ियों की अलॉटमेंट को रेगुलेट करने के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत की गई। मुख्तलिफ महकमों की सेक्रेटरीज ने सरकारी गाड़ियों से मुतल्लिक 10 साला रिकॉर्ड पेश किया। इस मौके पर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि नीलामी का अमल 1 माह के अंदर मुकम्मल होना चाहिए ताकि वसाइल मजीद ज़ाया ना हो। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने और पंजाब के बेशतर अजला, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। इस दौरान कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -12, स्कर्दू -10, गोपिस -9, अस्तौर -7, कालाम, हुंजा, गिलगित, बगरोट -5, पारा चनार, ज़ियारत और कल्लात पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।